So we will discuss some important points of the chapter cell structure. So one thing we should know, what is cell? We know cell is the structure and functional unit of life. हमारी cell क्या है? Structure और functional unit of life है. Cell theory, what is cell theory? हमें पता होना चाहिए. कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? शिडेन एंड शान ने दी थी सेल थ्योरी. अब नाउ दिस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. और हमारी सेल्स जो नई बन रही हैं वो कहाँ से आई हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं. सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन द सेल थ्योरी, दैट इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल and all the cells arise from pre-existing cells. So this, all the cell arise from pre-existing cell. This was given by रडर्फ वर्चॉव. ठीक है ना, रडर्फ वर्चॉव ने दिया था ये स्टेटमेंट. नाउ सेल ऑर्गेनेल्स क्या हुए? हमारे जितने भी बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल एंड दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स. एंडोसाइटोसिस, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ वेसिकल. सो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है क्या करती है? इनफोल्डिंग बना लेती है और क्या करती है? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है और थ्रू vesicle is formed. Now you should know the difference between active and passive transport. Active transport क्या है? Movement of molecules across the membrane and where energy is required. Energy is in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. And in passive transport we know no energy is required. It is movement of molecules depending upon the concentration gradient without requirement of any energy. So no energy is required in passive transport. This is important that we should know the difference between active and passive transport. अब next चीज क्या है? Osmosis है. What is osmosis? Now movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a region of higher to lower concentration. ज्यादा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं. Now next is facilitated diffusion. Diffusion, facilitated diffusion क्या हुआ? जिसमें ions, diffusion of ions and polar molecules across the membrane but through certain special transport protein. इनको हम क्या कहते हैं? Carrier protein also we call them as carrier proteins. तो वो diffusion जो इन carrier proteins के मदद की वजह से हो रहा है, that is known as facilitated diffusion. अब vesicles we know it is round spherical sac-like structures. Cisternae, they are elongated and they are flattened irregular structures. ठीक है ना? So these are the cisternae. Now next is tubules. Tubules we know these are elongated structures. सारे branch tubular structures हैं. So these are tubules. Chloroplast we know कि plastids, वो chloroplast क्या होते हैं? वो plastids जिनमें chlorophyll होता है. And chlorophyll we know it is green color pigment. प्लास्ट, हमारे क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ? वो प्लास्टिड्स जिसमें क्या है? क्लोरोफिल है. एंड वी नो क्लोरोफिल इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट. सो इट इज कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस. तो हमारे फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है कि क्लोरोफिल इज हेल्पफुल. नाउ अमाइलोप्लास्ट हमें पता है कौन से? ल्यूकोप्लास्ट हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड. दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं. एलियोप्लास्ट, वो ल्यूकोप्लास्ट जो फैट्स एंड ऑयल स्टोर कर रहे हैं, दीज आर नोन एज एलियोप्लास्ट. एरियोप्लास्ट कौन से हैं? जो कि प्रोटीन स्टोर करते हैं, उनको वो प्लास्टिड जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उनको एरियोप्लास्ट कहते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म इज हिस्टोन. व्हाट आर हिस्टोन्स? दीज आर पैकेजिंग प्रोटीन्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम से एसोसिएटेड हैं प्रोटीन्स उनको क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं. पैकेजिंग प्रोटीन्स हैं. माइक्रोबॉडीज. Now microbodies are the enzyme bearing membrane bound minute vesicles. So these are minute vesicles which bear enzyme. Polyribosome is a chain of ribosome. A chain of ribosome is known as polyribosome. Cytoskeleton हमें पता है network of protein filament in the cell that gives support to the cell. जो support देता है हमारे cell को network of filament, that is known as
cytoskeleton. Now chromatin, we should know that chromatin क्या है हमारा? क्रोमैटिन है कॉइल न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जो कि कॉइल न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमोसोम्स भी होते हैं, अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन that condenses into small rod like structures called chromosome. तो सेल डिवीजन में ये जो हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं ये स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बना देते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर इंपॉर्टेंट, वी नो दैट now two parts of chromosome is known as chromatids. तो क्रोमोसोम के दो पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन अ क्रोमोसोम दैट होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स टुगेदर। तो हमारे सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सो दिस इज सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है? जो क्रोमोसोम के बीच में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, जो दोनों क्रोमैटिड्स को बांध के रखता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम के सेंट्रोमियर इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द chromosome, so this is metacentric chromosome. Now next is submetacentric chromosome. सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे हुए? कि सेंट्रोमियर क्या है? एक छोटी आर्म है और एक लंबी आर्म है, तो ये क्या हुआ भाई? ये सबमेटासेंट्रिक हुआ। एक्रोसेंट्रिक क्या हुआ? एक टर्मिनल पे हुआ एक्रोसेंट्रिक, एक बहुत छोटा है और एक बहुत लंबी आर्म है, तो उसको हमने क्या किया? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप, सो दिस इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ यू शुड नो व्हाट इज सैटेलाइट। Satellites I have already discussed. The chromosome with secondary constriction show a smaller part of chromosome, it is known as satellites. तो एक smaller part of chromosome दिखाता है secondary constriction, उसको हम क्या कहते हैं? Satellite कहते हैं। Prokaryotic cell, a cell which has naked genetic material and lacks all the membrane bound organelles. membrane bound organelles नहीं होते जिसमें। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें well organized membrane bound nucleus and cell organelles are present, so this is eukaryotic cell. Now there are certain discoveries, आपको याद होनी चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी दी थी। जैसे रॉबर्ट हुक, हमने पता था 1665 में क्या किया था? कॉर्क सेल्स को एग्जामिन किया था अंडर माइक्रोस्कोप एंड गेव द वर्ड सेल। लुवेनहॉक ने क्या किया था? सिंपल, he used simple lens and observed the bacteria. तो simple lens यूज करके उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन discovered nucleus. Now these three scientists, Shiden, Shan and Virchow, they proposed the cell theory. Next is Purkinje. Purkinje gave the term protoplasm. Camillo Golgi is concerned with Golgi apparatus. He discovered the Golgi apparatus. George Pilate observed ribosome. Singer Nicholson, he proposed the fluid mosaic model, double layer fluid mosaic model, and year is also important, in year 1972. So this year is also important and the name of the scientist. You should know the year and the name of the scientist who gave fluid mosaic model. Now this is the gist of the prokaryotic cell structure. इसमें पूरा the cell organelles are present and with description and the function. Now first thing we know, it is cell envelope is present in prokaryotic cell. Different bacteria में different types of envelope like capsule. जब tough envelope present है इसको हम क्या कहते हैं? Capsule कहते हैं। जब loose layer is present, it is known as slime layer and it acts as protective unit. Next is cell wall. We know it is present beneath the स्लाइम लेयर के नीचे होती है एंड शेप देती है एंड प्रोटेक्शन भी देती है अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी नो इट इज बीनीथ द सेल वॉल एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सेमी परमिएबल, दैट इज इट अलाउज ओनली certain substances to move in and out of cell. So this is a special property of this plasma membrane. What is the function? Controls the entry and exit of molecule. तो entry और exit को control करता है, कुछ ही substances को अंदर आने देता है सेल के और कुछ ही substances को बाहर जाने देता है. So this is the cell permeability.
नाउ नेक्स्ट इज मेसोसोम. मेसोसोम क्या है? एक्सटेंशन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि सेल में जाती है. क्या करता है फंक्शन मेसोसोम का? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में यूजफुल है, सिक्रीशन में यूजफुल है, एंड रेस्पिरेशन में यूजफुल है. नेक्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम वी नो इट इज several ribosomes, they form a chain and it is known as polyribosome. Now we know if we are talking of the prokaryotes, तो prokaryotes में कौन सा राइबोसोम है? 70s. दो सब यूनिट में डिवाइड है, 50s और 30s. और फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या है भाई? फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस. इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म is there and it appears granular due to presence of ribosome. Cytoplasm क्या है? Storehouse for food, lipids, glycogen, granules. This is the function. Next is genetic material. In prokaryotes में क्या है? Nucleoid present होता है, हमें पता है. किसमें? DNA. It is composed of DNA, but it is not enclosed by membrane. Membrane नहीं होती है, and we know it is a hereditary material. So this DNA, it acts as a hereditary material. Next is plasmid. Now we know that plasmid क्या है हमारा? प्लाज्मिड है नॉन क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. जो नॉन क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं. और कैसे यूज होता है? वेक्टर्स की तरह भी हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट इज फ्लैजिला. फ्लैजिला का फंक्शन वी नो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन. और फ्लैजिला थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है जो सेल वॉल से निकलती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. It is composed of 3 parts, that is filament, hook and basal body. सबसे बड़ा कौन सा होता है? Filament is the longest part and hook and basal body. Next is pili or fibrillary. Pili and fibrillary, these are elongated tubular structures. Special protein से बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? Pili protein कहते हैं. Now some bristle-like structures are also present which are known as fibrillary. And what is the function? क्या करते हैं? Attachment में help करते हैं बैक्टीरिया को. किससे? वो structure से. नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज इंक्लूजन बॉडी. इंक्लूजन बॉडी का क्या फंक्शन है? रिजर्व मटेरियल स्टोर करती है. किसके फॉर्म में? फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन, इसके फॉर्म में स्टोर करती है. एंड व्हाट इज द, सो दिस इज द फंक्शन, इट स्टोर्स material. So this is the function of the inclusion body. So these were the organelles which were present in prokaryotic cell. और उनके functions हमें पता होने चाहिए. नाउ यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नो कि यूकैरियोटिक सेल में क्या आएगा भाई? हमारे सेल वॉल इज देयर. वी नो दैट प्लांट सेल हैज सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. दैट इज साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. एंड फंक्शन क्या होगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, टर्गर प्रेशर को अलाउ करेगा. सेकेंडरी सेल वॉल, secondary wall is there which is formed by lignin and suberin and it helps in lignification. So lignification is the function of this. Now middle lamina is also there. It is also formed of this cell wall. The middle lamina, it is thin layer and it has calcium and magnesium. क्या होता है हमारे middle lamina में? calcium और magnesium होता है. What is the function? जो neighboring cells है उनको क्या करता है? hold करता है. Plasmodesmata is there. It contains fine pores in cell walls and they are lined with the plasma membrane. Now these cytoplasmic thread-like structures, they link the cytoplasm of those two cells. दो सेल के cytoplasm किसमें होते हैं? ये plasmodesmata से link होते हैं. So this is the thing. Now next is cytoplasm. हमें पता है jelly-like aqueous substance है, transparent है, ground substance है which is present in the cell. And all the cellular activity is taking place in this cytoplasm. So it has nucleus and all living material of the cell is present in this cytoplasm. Now cell membrane, हमें पता है कि cell membrane, it is the outer most covering of animal cell that provides shape to the cell. हमें पता है cell membrane का क्या होगा? protection होगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग है, एक शेप हमारे सेल की शेप, हमारे सेल को शेप देता है. सो वी नो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. एंड वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर है. सो वी आल्सो नो दैट इट हैज
lipid bilayer and the structure, it has double lipid layer like structure which was given by Singer and Nicholson. Now next is nucleus. Nucleus we know it is enclosed by nuclear membrane, जिसमें क्या होते हैं, nuclear pores होते हैं. Now inside this nucleus there is chromatin network and nucleus embedded in the nucleoplast. जो इसका liquid है उसको हम क्या कहते हैं, nucleoplast कहते हैं. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, chromatin प्रेजेंट है, नेटवर्क प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. उसके अंदर क्या हमारा हेरिडिटी मटेरियल सब्सटेंस प्रेजेंट है, किसके फॉर्म में, क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. और क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हमारी ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, सारे जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो हमारा न्यूक्लियस ही करता है. सो दिस nucleus is very important because all cellular activities is performed by this nucleus only. Now next is mitochondria. We know mitochondria, it is a double membrane structure and inner membrane is folded to form the cristae. And this mitochondria, it is also a site of aerobic respiration. पूरा aerobic respiration हमारी Krebs cycle कहाँ होती है, mitochondria के अंदर होती है. Elementary particles are also there in mitochondria. Next is plastids. We know कि हमारे जो plant cells हैं उनमें क्या होता है, plastids होते हैं, green color plastids, and they are surrounded by double membrane gel like stroma and stacked ones form the grana. So grana is also there and it is stacked in the form of piles. Piles की तरह arrange होते हैं. क्या होते हैं plastids, हमारे site of photosynthesis होते हैं, जो because they contain chlorophyll. तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, they help in photosynthesis because they contain chlorophyll. Now next is endoplasmic reticulum. We know endoplasmic reticulum, it is also present in eukaryotic cell and it forms the cisternae, vesicles and tubules. Now we know there are two types of endoplasmic reticulum. दो तरह का होता है, एक smooth endoplasmic reticulum है जिसमें ribosomes नहीं है, absent है, and one is rough endoplasmic reticulum जिसमें ribosomes are present. So this because ribosomes are present, तो क्या करते हैं ये हमारे प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट. नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. नाउ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज आल्सो स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. तो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है, स्टैक ऑफ फ्लैट सेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सैक से बना होता है, सिस्टर्न, स्मॉल वेसिकल्स और लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. एंड व्हाट इज द फंक्शन, हमारे जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं दे फॉर्म zymogen granules and it is concerned with the secretion and lysosome function. तो सारे secretion कहाँ होते हैं, हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होते हैं. Now next structure is lysosome. Lysosome क्या है, spherical sac like सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट कि लाइसोसोम कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. एंड व्हाट इज द फंक्शन, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं. ये ऑटोफेगिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि हमारे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे. कुछ चीज अंदर लेनी है, कुछ चीज बाहर निकालनी है सेल से, दैट इज सो दीज लाइसोसोम्स आर हेल्पफुल इन द एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस. Now next is microbodies. हमारी स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बनी हुई हैं. सो दिस इज माइक्रोबॉडी. और क्या करते हैं, ये कैटलेज एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है. नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम. हमें पता है कि 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, 60 and 40s. क्या किस लिए हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में. वी नो राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन protein synthesis. So 80s ribosome is mainly present in the eukaryotes and they are divided into two subunits, that is 60s and 40s. Next is cytoskeleton. Cytoskeleton, we know it is complex network of fibrous structures in cytoplasm. तो cytoskeleton क्या है कि complex network है fibrous structures का जो cytoplasm में present है. Microfilaments are there which are very thin protein filaments. Microtubules are there which are unbranched hollow cylindrical fine tubes. देख सकते हैं these are the microfilaments and these are microtubules. तो ये हेल्प किस में करते हैं, हमारे एक्सोसाइटोसिस में, एंडोसाइटोसिस में एंड मोबिलिटी में.
नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। वी नो फ्लैजिला किस में करेगा भैया हमारा? फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसका अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स 9+2 पैटर्न। तो 9 पेरिफेरी पे और 2 सेंटर पे। सो दिस इज द 9+2 पैटर्न इज प्रेजेंट of microtubules which is enclosed in the plasma membrane, and we know that function it is helpful in movement. And cilia क्या है? cilia attachment के लिए होते हैं, जहां भी अटैच करना है किसी चीज को होस्ट से, cilia are very helpful. नेक्स्ट ऑर्गेनल इज सेंट्रियोल। हमारा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कहाँ? एनिमल सेल में। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सो प्लांट सेल में दिस इज एब्सेंट। क्या बनाता है ये? स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। और ये स्पिंडल फाइबर्स किस में हेल्प करते हैं? हमारे सेल डिवीजन में। दे हेल्प इन सेल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल। वी नो आउटर मोस्ट लेयर इज टोनोप्लास्ट एंड इनर इज सेल सैक. So small and large sacs bound single membranes are present which is known as tonoplast. तो टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होती है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन। और क्या हेल्प करती है ये? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे सेल से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे सेल से बाहर निकालने हैं, दे हेल्प इन दोज थिंग्स. So cell inclusion is there which contains both organic and inorganic crystals, like they store glycogen, fat, droplets, crystals, all are stored in this thing. Now next important term is karyotype. हमें पता होना चाहिए कि karyotype क्या होता है. Karyotype क्या होता है? External morphology of chromosome which is specific for each species of living organism. तो कैरियोटाइप क्या? कैरियोटाइप इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एक स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होती है. कैरियोटाइप कैसे स्टडी कर सकते हैं? मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में हम स्टडी करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग टेक्निक. बेंडिंग टेक्निक कहाँ यूज होती है? इट इज यूज टू स्टडी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बैंड्स एंड इंटरबैंड्स ऑन क्रोमोसोम. तो स्पेसिफिक पैटर्न्स हमारे जब बैंड्स और इंटरबैंड्स की यूज करते हैं हम, तो क्या कौन सी टेक्निक? बेंडिंग टेक्निक को यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? फ्लोरोक्रोम्स यूज करते हैं. ये हमारे फ्लोरेसेंट डाइज हैं जिनको हम बाइंड करते हैं. और ये कैसे? सो वी यूज दिस फ्लोरोक्रोम्स. नाउ नेक्स्ट इज द आइडोग्राम. आइडोग्राम, व्हाट इज दिस आइडोग्राम? आइडोग्राम आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप्स. हमारे कैरियोटाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आइडोग्राम कहते हैं. Now we should know what are the different types of chromosome. We already know that based on the centromere, chromosomes are divided into 4 types. Acentric chromosomes without centromere, उनको हम क्या कहते हैं? acentric कहते हैं. Monocentric chromosome with 1 centromere. Dicentric जिसमें 2 chromosome होते हैं. Polycentric means when the number of centromere is more than 2. It is known as polycentric. Now there are certain special type of chromosomes. कुछ special type के chromosome भी हैं, जैसे salivary gland chromosome है. ये chromosome किसने डिस्कवर किया था? E.G. Balbini ने in Pseudomonas lava of insect. Pseudomonas lava of insect में इन्होंने डिस्कवर किया था. और इनको हम क्या कहते हैं? This type of chromosome are also known as giant chromosome. तो हम salivary gland chromosome को, another name of salivary gland chromosome is known as giant chromosome. Now this is the diagram you can see. अब इन्होंने, कॉलर ने क्या कहा था इन क्रोमोसोम को? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी कहा था. He named these chromosomes as polytene chromosomes. So this is important. You should know the name of salivary gland, polytene chromosome, because they contain number of chromatid which is high. तो नंबर ऑफ क्रोमैटिन इनमें क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं. जो सोलन एरियाज है, कुछ प्लेसेस पे सोलन एरियाज मिलता है हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम में, उनको हम कहते हैं बाल्बियानी रिंग्स और पफ्स. एंड दीज पफ्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. तो ये बाल्बियानी रिंग्स आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. एंड दिस सिलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, they are concerned with metamorphosis and molting process. जो हमारे इंसेक्ट लावा का molting process है, उसमें ये सिलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम हेल्प करते हैं. Now next important chromosome is Lamb-Brush chromosome. Lamb-Brush chromosome Fleming and Rickert ने डिस्कवर किया था किसमें? oocytes of vertebrates में, एम्फीबिया में डिस्कवर किया था. कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में
ऑफ सेल डिवीजन में डिस्कवर किया था। क्योंकि ये दीज क्रोमोसोम्स लुक लाइक लैम्ब ब्रश, दस दे आर नोन एज लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। क्योंकि लैम्ब ब्रश की तरह लगते थे तो इसलिए इन क्रोमोसोम्स को नाम दिया गया, दैट इज लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। एंड साइज ऑफ दीज क्रोमोसोम्स इज 500 माइक्रोमीटर। इन क्रोमोसोम्स का क्या साइज हुआ, 500 माइक्रोमीटर। इसलिए इनको क्या कहा, जायंट क्रोमोसोम्स का, क्योंकि साइज बहुत बड़ा था तो इनको इसलिए कहा जायंट क्रोमोसोम।